بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خرکیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کے ایک محلہ حیدرآباد UC 34 میں، اور ایک اور محلہ، ایک اور علاقہ اور ایک اور UC اس وقت متعلقہ اداروں کی منتخب نمائندگان کی، وہ موجودہ ہوں سابقہ ہوں، ان کی نااہلی جو ہے وہ ہمیں بتاتی نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح کے جتنی بھی یہاں پر گزرنے والی سڑکیں ہیں، یہاں سے جتنی بھی گزرنے والی گلیاں ہیں، ان سب پر جو ہے وہ اس وقت پانی کھڑا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد بھی یہاں پر ہیں، سکولز بھی ہیں، اور ان کے سامنے بھی کئی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے فلو کے ساتھ جو ہے وہ بہہ رہا ہے جیسے کسی ندی نالے سے جو ہے وہ پانی بہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے جو یہاں کے رہنے والے رہائشی ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، وہ شدید پریشان ہیں، کیونکہ ان کے روزمرہ کے معاملات ہوں، ان کے روزمرہ کے ظاہر سی بات ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے کام کاج پہ جانا، بچوں نے اسکول میں جانا، کالجز میں جانا، یونیورسٹیز میں جانا، تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں یہ سر انجام دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ماحول میں، جب یہ چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ تعفن، سمیل بہت زیادہ ہے، اور گٹروں سے پانی نکل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے گندا پانی ہے، اس کی سمیل، تعفن سے لوگوں کا یہاں پر رہنا جو ہے وہ عجینن ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے پاس جائیں گے، ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کسی ادارے نے متعلقہ جو منتخب نمائندگان ہوں، وہ موجودہ ہوں، سابقہ ہوں، کسی نے جو ہے وہ ان کے حل کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے وہ اپنی دلچسپی دکھائی ہے یا نہیں۔ لوگوں کے پاس جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کوٹ کروں گا کہ اگر آپ کو، آپ کے اہل علاقہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسکرین پر ہمارے نمبر شو ہو رہے ہوں گے، آپ ان پر رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ متعلقہ اداروں تک، منتخب نمائندگان تک ضرور پہنچائی جائے۔ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا جو دکھ درد ہے وہ انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت UC 34 کے حالات، سچویشن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جب ہم ایک اور گلی ہے اس میں جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہم ایک بھائی نے بھی بتایا ہے کہ بھائی یہاں پر تقریباً 3-4 سال سے پانی کھڑا ہوا ہے، اور اب یہ سچویشن ہے کہ لوگوں کے گھروں کے آگے پانی کھڑا ہے، اور انہوں نے وہیں پر جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مٹی وغیرہ ڈال کر یا پتھر ڈال کر جو ہے ان کو پانی کو روکنے کی جو ہے وہ ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے، اور یہاں پر تقریباً جو ہے 1 فٹ کے قریب جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ نکل نہیں رہا، وہ کھڑا ہے وہیں پر، نہ اس کی کوئی نکاسی ہو رہی ہے، نہ اس کی جو ہے وہ نکاسی کا کوئی سسٹم موجود ہے۔ بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کر کے ڈیٹیل میں اس معاملے کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بھائی یہ کیا سچویشن حالات ہیں؟ آپ ہمیں نے بتایا کہ بھائی 3 سال ہو گئے ہیں یہ اسی طرح جو ہے وہ ڈیم کی صورت میں جو ہے وہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ عرصہ 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں جی، ہم یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے موذی بیماریاں، ہیپاٹائٹس وغیرہ یا ملیریا وغیرہ جو ہے نا پھیل رہا ہے، لیکن یہاں ہماری سنوائی کرنے والا کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کوئی نہ کہہ دیتا ہے آپ اس کے پاس جائیں یا اس کے پاس جائیں، محکمے والوں نے کبھی ادھر چکر نہیں لگایا، ہم ایسے ہی برداشت کر رہے ہیں، تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یعنی کسی محکمے نے یہاں پر توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی؟ سر آپ دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں یا اس سائڈ پہ دیکھ لیں، ویسے کا ویسے، اگر محکمہ توجہ دے تو یہ ہمارا حل نہ ہو جائے۔ ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی کام کیا، ہم نے پیسے دے کے اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی کام کروایا ہم نے کروایا ہے یہاں پہ۔ یعنی آپ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ آپ نے خود چیزیں مینج کر کے، پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے، پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ چیزوں، پرائیویٹ طور پہ ہم نے سب کچھ کیا ہے جی، یہ جو بھی کیا ہے نا، مٹی ڈلوائی ہے یا گٹر کھلوانے ہوتے ہیں، جو محکمے کے بندے ہیں انہی کو پیسے دے کے پھر یہ ہم سیوریج سسٹم صحیح کرواتے ہیں۔ بل وغیرہ آتے ہیں اس ایریا میں؟ بل آتے ہیں، ہم لوگ پے بھی کرتے ہیں، ادائیگیاں بھی کرتے ہیں؟ ادائیگیاں بھی کرتے ہیں ہم لوگ۔ جب جاتے ہیں ان کے پاس کہ بھائی یہ فلاں جگہ مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو کیوں حل نہیں کیا، تو وہ ہمیں پورا ایک پورٹل کھول کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی جس ایریے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں جو ہے لوگ بل بھی نہیں ادا کر رہے، وہاں سے ہمارا ریونیو ہی نہیں جنریٹ ہو رہا، تو جب ریونیو ہمارا جنریٹ نہیں ہو رہا تو ہم کس طرح جو ہے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوں کی ادائیگیاں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ ہیں جو نہیں پے کرتے، لیکن ہم لوگ تو پے کر رہے ہیں۔ یعنی ریشو نکالیں کتنی ہو؟ ریشو میرے خیال میں تو 50% ہے ریشو، کچھ لوگ کرتے ہیں، اگر کسی کو سہولت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، کوئی چیز کی ادائیگی کریں، ہمیں کچھ دیں بینیفٹ، ہم ہی اس چیز کی ادائیگی کریں، ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن یہ لوگ ہماری بات نہیں سن رہے، نہ محکمے والے سن رہے ہیں نہ کوئی اور سن رہا ہے۔ ادائیگیاں آپ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ کر بھی رہے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں کر رہے،
ٹھیک ہے, لیکن ہمیں سہولیات دی جائیں, ہم ادائیگیاں بھی کریں گے. ظاہر سی بات ہے, شہری یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سہولیات دی جائیں, ہم بلوں کی ادائیگی کریں گے. اسکرین پر آپ اس وقت چیزیں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بھائی یہاں پر میں جب پہنچا ہوں, اس وقت قریب ایک گلی تھی, وہاں کے حالات تو اور بدتر ہیں. وہاں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہے, لوگوں کی بالکل گھروں کی الائنمنٹس کے ساتھ وہ پانی ملا ہوا ہے. یہاں پر جو کوئی کارنر پر شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں ان کے سامنے پانی کھڑا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ یہاں کے جو گھر ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز, جو الائنمنٹس ہیں, جو بنیادیں ہیں, ان کے لیے بھی یہ تباہ کن یہ پانی ثابت ہو سکتا ہے. بہت سارے بھائی گھر ایسے ہوں گے جن میں یہ پانی داخل بھی ہو گیا ہوگا, جن کی وجہ سے ان گھروں کی بنیادیں خراب ہو گئی ہوں گی, دراڑیں پڑ گئی ہوں گی. کتنا بڑا نقصان ہے, اور کتنے کوئی ایسے گھر ہیں جن کی یہ حالات ہے ان پانی کی وجہ سے. جی بھائی, پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ایریے میں تشریف لائے اور ہمارے آواز بنے, ہمارے مسئلے کو اٹھایا ہے. دوسرے نمبر پہ جیسا کہ بھائی نے بتایا ہے کہ لمبے عرصے سے یہ ایشو ہے. ہم مختلف عہدیداران سے مل چکے ہیں, واسا کے دفتر لگا کے تھک چکے ہیں, کوئی بھی ہماری سنوائی نہیں کر رہا ہے. تو یہ لمبے عرصے سے کیونکہ ایشو ہے, اس وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں, گھروں کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں, گھروں کے اندر بھی گندا پانی داخل ہو رہا ہے, بچے باہر نہیں نکل سکتے, بچے بزرگ سارے بہت پریشانی کے عالم میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں گھروں کے اندر تک جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں, باہر نہیں نکل پا رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ لوگوں نے مٹی ڈال کے, پتھر ڈال کے اپنے گزرنے کے لیے راستہ بنایا ہے, لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے. لوگ پھر بھی اس کے اندر گر رہے ہیں, روزانہ حادثے ہو رہے ہیں, بائک والے گر رہے ہیں, عورتیں گر رہی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ کتنے کو تقریباً گھر ہوں گے اگر اسی گلی جس جگہ پر ہم کھڑے اگر بات کریں, یہاں پر یہ جہاں سے پانی یہ گزر بھی رہا ہے, پانی لگ بھی رہا ہے, تو کتنے کو گھر ہوں گے جو افیکٹڈ ہو چکے ہوں گے اس گندے پانی کی وجہ سے؟ جی بھائی, یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے, تو یہاں پر کوئی بھی خالی پلاٹ نہیں ہے, ہر جگہ رہائش ہے, تو ہر گھر کو تقریباً پرابلم ہے. اچھا, ہر گھر کی تقریباً یہ دراڑیں, وہ الائنمنٹس کی خرابی ہونا, پانی کا داخل ہونا, یہ تقریباً ہر گھر کے ساتھ؟ جی, ہر گھر کا ہی مسئلہ ہے یہ چیز آپ دیکھ لیں جی, کہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ آج کل ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ورکنگ کلاس کے لیے, مڈل کلاس طبقے کے لیے اپنے گھر تعمیر کرنا, نیا گھر بنانا ایک خواب ہے, اور اسی خواب کی تعمیر کے لیے وہ شخص جو ہے پورا زندگی محنت کرتا ہے, پیسہ جمع کرتا ہے, اور پھر جو ہے وہ کہیں اپنا ایک گھر بناتا ہے. اور اس کی بھی سچویشن حالت یہ ہوتی ہے کہ پانی داخل ہونے کی وجہ سے, پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے, آس پاس پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو پاتی, اور جس وجہ سے پانی جو ہے وہ گھروں تک داخل ہوتا ہے. ایک اور اس وقت بزرگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں, بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے, کس طرح یہ ان حالات میں گزر بسر کر رہے ہیں, کس طرح بزرگ یہاں سے گزرتے ہیں جہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ گزرنے کے لیے گلی سے جو ہے وہ آدھے فٹ کا بھی راستہ نہیں ہے. کیسے ہیں, مزاج ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی, ماشاء اللہ. بزرگ ہو کر کتنا تکلیف دہ ہے آپ لوگوں کے لیے اس ماحول سے گزرنا؟ بہت اوکھا جی گزرنا. ٹھیک ہے, بچے نہیں لنਘ سکتے, بڑے نہیں لنਘ سکتے, تھوڑے سامنے ہی ہے. بچے لنਘتے تو ڈگ پیندے نے, کپڑے لپڑ جاندے جی. بزرگ لنਘتے تو وہ چھٹے پی جاندے, مسجد چ نہیں جا سکتے. یعنی بزرگ ہوں, بچے ہوں, کسی کا بھی یہاں سے گزرنا مشکل ہے. ہاں جی, بہت اوکھا ہو گیا جی. تو یہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو ادارے ہیں, متعلقہ محکمے ہیں, ان سے کہ حالات کو بہتر کیا جا سکے, آپ لوگوں کو جو ہے وہ رہنے کی, مناسب رہنے کی جگہ مل سکے؟ ہاں بالکل ملنی چاہیے. جس کو بھی چاہیے وہ کہتا جی اوپر چل جاؤ, اوپر چل جاؤ, انہوں بھیج دیں جی, کوئی سنتا ہی نہیں. یعنی کوئی ظاہر سی بات ہے ادارہ جو ہے وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی اس طرح جو ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے پیسے دے دو بس مڑا جا. ظاہر سی بات ہے جی کہ کوئی بھی ادارہ محکمہ ہو وہ تبھی کام کر سکے گا جب چیزوں کو, معاملات کو جو ہے وہ بہتر شہریوں کی طرف سے بنایا جائے گا. لیکن وہیں پر شہری یہ کہتے ہیں کہ ہم بنانے کے لیے, ان کو بہتری لانے کے لیے تیار ہیں, ادارہ کام کر کے ہمیں دکھائے. یہ تو کہانی تھی بزرگوں کی, یہ کہانی تھی نوجوانوں کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب ظاہر سی بات ہے بچے بھی اس چیز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اگر ماحول گندا ہے, اگر آلودہ ماحول ہے, پولوٹیڈ انوائرمنٹ ہے, تو اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ بچے متاثر ہوتے ہیں. بچے کس طرح متاثر ہوتے ہیں, کن کن پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین. اچھا, حسنین نام ہے. ہاں جی. اچھا, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو حسنین؟ 5. کلاس میں. بیٹا اسی راستے سے گزر کر آتے جاتے ہو اسکول؟ ہاں جی. اچھا, بہت مشکل آتی ہوگی بیٹا جب راستے سے گزرتے ہوگی آپ, پانی میں کبھی گر جاتے ہوگے, بیگ وغیرہ بکس خراب ہو جاتی ہوں گی, یونیفارم خراب ہو جاتی ہوگی؟
हाँ जी, इधर से गुजर के जाते हैं स्कूल और ऑटो वाले अंकल लेने आते हैं। अच्छा, ऑटो वाले लेने आते हैं। तो ऑटो में भी ज़ाहिर सी बात है काफ़ी दफ़ा इस तरह मसला मसाइल हो गया होगा कि वो कहीं किसी गटर वगैरह में गिर गया होगा, क्योंकि पानी खड़ा कुछ नज़र तो आता नहीं है। हाँ जी, वो कभी जाते हुए ना ऑटो का ये जो टायर जोन सा है, कभी जाते जाते पता नहीं लगता पानी के अंदर चल जाता है। इधर से गुजर के इधर से आगे जाते हैं अंकल, तो इस वजह से। यानी ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात मसाइल हैं। हाँ जी। ज़ाहिर सी बात है ये जी, एक बच्चा था खड़ा था हमारे साथ, हमने इनसे बात की है, कह रहे हैं कि जिस तरह हम गुजर कर स्कूल आते जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। इस वजह से को इस कम्युनिटी में रहने वाला बच्चा हो, इस माशरे में रहने वाला नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, ख़वातीन हो, सबको जो है वो मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ और लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। गल नूं 7 महीने 8 महीने हो गए ने, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। अच्छा, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी ने भी इस मसले को काउंटर करने की जो है वो कोशिश की है, किसी ने भी ये देखने की कोशिश की है कि ये जो इतना बड़ा इस वक्त मसला अहले इलाका के लिए वबाल जान बना हुआ है, इसका ख़ात्मा हो सके, इसका तदारुक हो सके। हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे मिजाज हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, सारी गलियों में पानी खड़ा हुआ है, इस पानी की निकासी के लिए, इस पानी को फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की मेंटेनेंस के लिए कोई इदारे ने दिलचस्पी दिखाई है? नहीं, कोई नहीं दिखाई है कि ये गंदगी इतों साफ होएगी तो फिर गल बनूगी। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, अब बिल भी दार रहे हैं तो फिर भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलों की अदायगी करने के बाद भी कोई मसला नहीं हल हो? नहीं हल हो रहा है। ये वासा के बिल हैं, हाँ जी, ये अदायगी इनकी हुई है, हो ही है जी बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर सी बात है फिर कंप्लेन वगैरह आपकी तरफ से कोई की गई थी, उनको बताया गया था कि भाई यहाँ पर मसले पाव कर जो है वो इसकी कोई दुरुस्ती करें? हाँ जी, बताई गई है, बहरहाल कोई नहीं आया है सफाई वास्ते। अच्छा, सफाई वाला कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है भाई। अच्छा, पहले कभी कोई आते रहे हैं, आकर यहाँ पर जो है वो साफ सफाई करने की कोशिश की जाती रही है? बहुत ही करके तो चले जाते, फिर वो हाल हो जाता है। ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सफाई यहाँ पर जो है वो नहीं होती, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे हो गया, बूढ़े हो गया, ख़वातीन हो गई, जब अपने अपने काम पर जाते हैं तो। हाँ जी, बहुत मुश्किलात का सामना करना पैंदा। आ देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका इंतज़ामिया है, उनसे कि हालात मामलात को बेहतर किया जाए यहाँ पर? हाँ जी, मामला बेहतर हो जाए तो फिर ठीक, अल्लाह खैर करे। आप चाहते हैं कि मामलात को बेहतर किया जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल भी। सिचुएशन और सूरत हाल आपके सामने इस वक्त जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो वर्किंग क्लास रहती है, यहाँ पर जो है वो लोग रहते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो मेहनत मजदूरी करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कितनी तकलीफ़ देह हैं, कितनी जो है ये प्रॉब्लमेटिक हैं ये चीज़ें, कि वो लोग एक तरफ तो माशी चैलेंजेस का लोगों का सामना है, जिस वजह से जो है वो एक दिन की भी अपने काम से छुट्टी करना उनके लिए जो है वो दुश्वार है, नामुमकिन है। वही जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि फिर अपने काम पर भी जाना उनके लिए लाजिम है, इदारों के सामने इन चीज़ों को रखना भी उनके लिए लाजिम है कि यहाँ पर जो मौजूदा मसाइल हैं या जो पैदा हो चुके हैं मसाइल, इनको जो है वो ख़त्म किया जा सके। वहीं पर जो है वो इन लोगों को ये जो मसाइल हैं वो जूँ के तू होते हैं अभी तक, और नज़र भी ऐसे ही आ रहा है कि इन्होंने इस मसले को जो है वो काउंटर करके ख़त्म करने की जो है वो इदारों की तरफ से कोशिश नहीं की गई है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे मिजाज हैं, सेहत ठीक है आपकी? दवावां दिहाड़ियां बात। चले माशाल्लाह। कैसे सर देख रहे हैं चीज़ें, हालात? अभी एक बुजुर्ग हमें बता के गए हैं, ज़रा डिटेल में बताएं क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? यार इस गल नूं 7 महीने 8 महीने हो गए ने, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। अच्छा, यानी ये 100 तकरीबन हाँ जी 7-8 मंथ से हो गए हैं ऐसे ही? 7 महीने 8 महीने ਹੋ ਗਏ ਹੈ। हाँ जी, ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੇੜ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। अच्छा, यहाँ पर शाम टाइम में मुझे बताया गया कि शाम टाइम तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है,
अभी भी हम देख रहे हैं कि भाई वो जिस तरह कोई नहर से पानी बह रहा होता है मुसलसल, वैसे ही यहाँ पर बह रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, ऐसे है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। सारा जरा ये पानी है, बाजार भरे होते हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए जाएँ तो अपने गंदे हो जाते हैं। नमाज की अदायगी तक आप लोग नहीं कर पाते। नहीं, बहुत मुश्किल, घर ही बननी पैंदी है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका इंतज़ामिया है, मुतलका हुकाम है ਮਿਹਨਤ उनसे? ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਵਾਂ ਭੇਜਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੋਣ, ਗੱਟਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, इससे कबल जो है वो अगर साफ़ सफाई की बात हो जाए, ये तो अभी हमने मेंटेनेंस की बात की कि पानी की निकासी को जो है वो बेहतर किया जा सके। उसके साथ ही चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ का एक प्रोग्राम शुरू रहा जिसमें उन्होंने जो है वो इलाकों की साफ़ सफाई की, साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से एक, तो वो जो प्रोग्राम शुरू रहा उसमें किसी इदारे ने यहाँ पर आकर कोई सफाई वगैरह की है गलियों की, रास्तों की, यहाँ पर सड़कों की, कि यहाँ के जो रहने वाले हैं इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके? ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਨੂਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ। ठीक है। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਟਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਖੀਰਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬਸ, ਸਭ ਦਾ ਖਰਲਾ अच्छा, इसकी क्या वजह है? ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ, यानी वो जो गंद है वो ਚੁੱਕਦੇ वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ਬਾਹਰ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ, ਗਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। मैं आपसे भाई बुजुर्ग हमारे साथ खड़े थे, इनसे हमने बात कर ली है, एक भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कैसी हालात माहौल सर आप देख रहे हैं? यहाँ से आपका गुजरना आसान है? नहीं सर, हमारा गुजरना तो बहुत मुश्किल है। ये तो सर जी मैं कि तो बच्चे छोटे जड़े ना उन्होंने का लंघना बहुत औखा। आपकी वो टांग का मसला है, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ से तो जब आप गुजरते होंगे बड़ी दुश्वारी पेश आती होगी, क्योंकि जले यहाँ पर जहाँ मुसलसल पानी खड़ा हुआ है वो शख्स तो यहाँ से छलांग लगा के भी दूसरी साइड पर जा सकता है, लेकिन आपके ज़रा मसला है पाँव का, तो ये तो बड़ा परेशानी होगी आपके लिए। ਅਸੀਂ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई हल नहीं होता इसका? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो यार कभी अभी जिस तरह मैं बात की मैंने कि साफ़ सुथरा पंजाब का एक प्रोग्राम शुरू रहा, तो चलो मेंटेनेंस तो एक अलग चीज़ है, साफ़ सफाई के चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई यहाँ पर? ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਲੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਲਈਏ। यानी वो ज़ाहिर सी बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपना काम दूसरे के सर पर डालते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारा तो काम नहीं, अगले बंदे का काम है। तो आप उस लोग जो है यहाँ के रिहायशी जो है उस लूप का शिकार हो गए हैं कि आप एक के पास जा रहे हैं, फिर वो अगले के पास भेज रहा है, फिर इसके ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆ ਭਾਜੀ ਬਿੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈਣ बंद। चूँकि हम जब मसाइल होते हैं हम कोशिश करते हैं कि अब उन इदारों के पास जाकर जो है वो बात उनसे की जाए। हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, और रेवेन्यू इसलिए नहीं आ रहा कि लोग बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। अब जब हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, लोग बिलों की अदायगी नहीं करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम अपना काम जो है वो स्मूथली कर सकें? ये बात उनकी दुरुस्त है कि आप लोग जो बिलों की अदायगी नहीं करते? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਯਕਦਮ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ 70,000 80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ। अच्छा, यानी वासा का बिल? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यहाँ पर ਰੱਖੇ। इतना ज़्यादा किसी का आया बिल? ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। बात करूँगा, ख़वातीन भी खड़ी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश मैं करूँगा। और ज़ाहिर सी बात है ये जो चीज़ें हैं इनसे जानने की हम कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ जो ख़वातीन होंगी उनसे बातचीत करेंगे। 2-3 ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆ,
ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 45,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 वासा का बिल। ਵਾਸਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो खातून एक घर के अंदर मौजूद थी जब हम अपनी पहली ब्रेक कर रहे थे, तो वो काफ़ी गुस्सा थी, हमें नाला नज़र आ रही थी। हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए, उनसे बात जानने की कोशिश की जाए कि मसला क्या है, क्यों जो है वो इतना नाराज़ हैं, क्या वजह है जी, क्यों इतनी परेशान है, इदारों पर इतनी हाइपर हुई हुई हैं, क्या वजह है? ਭਾਈ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ, 2-3 ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 45,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 वासा का बिल। ਵਾਸਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਮੰਥਲੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਆ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। मुझे बताया जा रहा था कि शाम टाइम तो यहाँ से ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 20-25,000 ਤਨਖਾਹ 70 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ सी बात है, ये तो एक ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, 500 ਕਰ ਦੇਣ ਮੰਥਲੀ, 600 ਕਰ ਦੇਣ, ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किराए का मकान है, आप अभी ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। यानी ज़ाहिर सी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो बिल भेज दिए गए हैं। 70,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾਸਾ ਦਾ। ये फिर मैनेज कैसे हुआ, ये चीज़ें फिर उनके साथ सेटल कैसे हुई? क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਵਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੇ ਆਵਾਮ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। 70,000 अगर एक बिल आ गया, ठीक है, तो आपने फिर उसको हल करने के लिए उनसे कोई नेगोशिएट करने की कोशिश की? ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ दोबारा उनकी तरफ से ना वो बिल की दुरुस्तगी की गई। ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮਕੂਲ ਜੇ ਮੰਥਲੀ ਬਣਾਓ, 500 ਬਣਾ ਲਓ, 1000 ਬਣਾ ਲਓ, 600 ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਤਾਰੇ 70,000 ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇ? ਫਿਰ ਭਰੇ ਆ ਗਟਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਵਾਸਾ ਦਾ। ये तो बात हो गया बिल। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਕੂਲ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 500 ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਫੀ ਘਰ ਦੇ ਰਹੀ ਗਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਂਦੇ ਆ ਮੜ ਜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ, ਫੀ ਘਰ ਕੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਫਤੇ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, 500 ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣ ਲੈ गटर साफ कर एक दिन कट दे। अब आप यही कहना चाह रहे हैं कि बिल भी आप दे रही हैं और उनसे हट के जो है वो बिल ही आ रही हैं और उनसे हटकर जो है वो आपको पैसे अलग से भी देना पड़ता है? हाँ देना पैंदे आ सारे घर वाले दिन। अपील क्या करना चाहेंगी जो यही है कि सफाई करो जोड़ा कि 200-400 मंथली मकूल बिल बंदा हर घर देगा, असि जिम्मेदारी चुकते सारे घर वाले देंगे। साफ सफाई वैसे कभी यहाँ पर हुई है? कोई किसी इदारे ने आकर जो है जो पानी की निकासी से हटकर कोई साफ सफाई या गलियों की मेंटेनेंस कोई करने की कोशिश? किसी ने भी नहीं कदी की, किसी ने भी नहीं की। आप मगर ठाड़े सामने 2 घंटे हो ठहरो फिर बाद च देखिए। जाहिर सी बात है, ये तो अभी हम खड़े हैं, अभी दिन का आगाज़ ही है, दिन का आगाज़ ही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी फ़्लो में बह रहा है और ऐसे फ़्लो में बह रहा है। आप भी ये चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे नदी नाले पर जो है वो पानी बह रहा होता है, जैसे जो है वो किसी आप कह लें कि नाले से एक पानी गुजर रहा है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर जो हादसात हैं वो भी मामूल बन चुके होते होंगे। कभी जो है वो कोई बच्चे के साथ हादसा पेश आ जाता होगा, किसी जो है वो बुज़ुर्ग के साथ हादसा पेश आ जाता होगा, कभी किसी जो है वो नौजवान के साथ जो गुजर रहा होगा उसके साथ हादसा पेश आता होगा। इन चीज़ों पर कवर करने के लिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि इदारे अपनी जो है वो दिलचस्पी दिखाएं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मजाज हैं सर? ठीक है। कैसे हालात माहौल देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਮੀਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ये तो जिस तरह के हालात हैं तो यहाँ पे तो रहना बड़ा मुश्किल होगा। आप ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ? ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। नहीं होने बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ नापाक हो जाते हैं, कपड़े नापाक, कपड़ों की हालत में तो कभी नहीं होंगे। ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੈਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਂਦੋ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 2 ਟੋਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो इतने मंद गुजर जाने के बाद भी कोई किसी ने जो है वो जहाँ पर दिलचस्पी दिखाने की, कोई एक्शन नहीं, और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ देख बात थी वो ये थी कि यहाँ पर वासा के बिल जो है वो जिस तरह भी वो खातून एक बताकर गई कि भाई 60-70 हज़ार तक आ रहे हैं। 70 हज़ार ਉਹ ਬਤਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, 1000 ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 500 ਆਉਂਦਾ ਵਾ, 2000 ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾਦਾਰ ਤਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ 70,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰॉपर ਲੈਣ। तो इससे बात जब आपने की तो उनकी तरफ से रिस्पांस क्या आया? उन्होंने कहा कि यार चलें बिल आ गए हैं इतने, तो अब हम इनकी कोई इंस्टॉलमेंट्स कर लेते हैं, कोई अकसात में इसको हम तकसीम कर लेते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੂਲ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये चीज़ें हैं जी, हालात आपके सामने हैं। जिस तरह अभी बुज़ुर्ग एक बता रहे थे हमें कि पानी कई जो है वो फिट यहाँ पर खड़ा हुआ है, पानी निकल रहा है, और ये चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे होंगे कि गटरों से पानी जो है वो गंदा निकल कर उबल कर जो है वो बाहर रोडों पर सड़कों पर घूम रहा है। अब ये चीज़ें यहाँ के रहने वालों के लिए बेतहाशा तकलीफ़ दे। हम जितनी देर खड़े हैं, स्मेल ताफून जो है वो बड़ी महसूस की जा रही है यहाँ पर। एक और हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग शहरी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे दिन गुजर रहे हैं इन हालात माहौल में सर? मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। कैसे काम काज अपना कर पाते हैं? कैसे जो है वो कैसे अंदर से नहीं निकला जाता, तो काम काज क्या करना है? यानी घरों तक महदूद हो गए सब हैं, नज़र आ रहा है, घरों तक महदूद हो गए इस हालात बिल्कुल में। बिल्कुल। इधर रात को ये पानी की वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो ये फिर जाहिर सी बात है, इतनी अगर चीज़ें तकलीफ दे बन चुकी हैं तो ये इदारों को तो चाहिए था ना, महकमों को चाहिए था कि वो दिलचस्पी दिखाते। उनको चाहिए था, तो वो नहीं दिलचस्पी दिखा रहे। जब भी कोई कंप्लेंट करता है वो 10-15 दिन के बाद आते हैं। अभी इसमें वो सरिया लगा के चले जाते हैं, थोड़ा सा पानी चल गया, वो इधर अभी गली नहीं क्रॉस की तो फिर वही हाल हो जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक आरजी जो है वो जुगाड़ लगाकर चीज़ों को ठीक किया जा रहा है, कोई परमानेंट सोल्यूशन ही नहीं कर रहा है इसका? नहीं कोई नहीं। तो चाहते हैं आप कि इसका जो है मुस्तकिल हल निकले? हल होना चाहिए। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। जाहिर सी बात है जी, ये लोग भी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, ये लोग भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और इनके भी जाहिर सी बात है हुकूक हैं, इनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब चीज़ें हालात आपके सामने हैं, आप देख भी रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो चैलेंजिंग है, ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं वो ये हैं कि जिस तरह पानी का फ़्लो है या जिस तरह पानी निकल रहा है, तो ये इस जगह से तो गुज़रना ही लोगों का जो है वो आप कह लें कि नामुमकिन है, जिस तरह की सिचुएशन हालात हैं। भाई एक और आ गए हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। नहीं सर, पानी बहुत ज़्यादा, दुकान का बहुत बुरा है, गाहक कोई नहीं आना। अच्छा, इस वजह से आप जाहिर सी बात है वो सही महसूस नहीं करते इस माहौल एनवायरनमेंट? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है स्मैल देने की वजह, तो पानी की वजह तो बुखार चढ़ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। अच्छा यार, यहाँ पर फैसिलिटेट करना चाहिए था। सिटी के बीचों बीच एक इलाका वाक़ है, हैदराबाद या फैसलाबाद के इलाके में, यहाँ पर इस शहर के अंदर ये इस इलाके में चाहिए था कि इसको फैसिलिटेट किया जाता, क्योंकि एक सिटी एरिया में ये आता है, शहर के सेंटर में वाक़ है, फिर भी नज़रअंदाज कर दिया गया। वो कर देनी सफाई, आन तो फिर सफाई होनी है, उस नहीं आनी सफाई। आंदे बस मार सरिया मार दे, बस पानी गुजर गया थोड़ा फिर बंद है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बड़ा एक आर्जी किस्म का जुगाड़ लगा देते हैं वक्ती तौर पर, कोई सरिया वगैरह लगा कर, परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट हल नहीं निकल रहा? हल कोई नहीं है, कोई नहीं, सफाई होंगी नहीं है, थोड़ी देर होंगी सफाई, मगर फिर वही काम हो जाता है। क्या मतलब घंटा रही सफाई, फिर उस समय पानी भर जाता है बाजार सारा आलटुआ। मतलब दुकानदार गाह गाना बहुत मुश्किल हो गया है इतने।
सिर्फ पानी की बात। कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर बैठे जो लोग हैं, को काम कारोबार कर रहे हो छोटा मोटा, या यहाँ से गुजरने वाले लोग हों, ख़वातीन हों, सबको दुश्वारियों का सामना है। दुश्वारियाँ इस वजह से हैं कि यहाँ से जो गुजरने वाला रास्ता है वहाँ पर कई फिट पानी खड़ा हुआ है। और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जब इस तरह का माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा, तो लोग कैसे अपने घरों के अंदर सो भी पाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह स्मेल ताफून है तो ये उनके घरों के अंदर तक जाती होगी और उनके लिए घरों में सोना रहना नामुमकिन होगा। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग हमारे साथ होंगे, मामले की मज़ीद गहराई को जानने की कोशिश करेंगे। चला तो फिर बंद हो जाता। इस दफ़ा फिर ये बिल तारा हमने 1800 पता नहीं कितना रुपया। ये वासा का बिल है, बिल्कुल जी। ये बुज़ुर्ग जो हमारे साथ खड़े थे, ये बुज़ुर्ग हमें बता रहे थे कि इन्होंने जो है ये वासा का बिल जो है इसकी अदायगी की हुई है, क्योंकि हमें जिस तरह हम कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो हमें ये उनकी तरफ से एक वजह मेरे सामने रखी जाती है कि जी हमारा रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू इसलिए नहीं है कि जो बिल आ रहे हैं उनकी लोग अदायगी नहीं कर रहे, अदायगियाँ हो रही हैं। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जिस यूसी में हम मौजूद हैं, यूसी 34 के हालात सिचुएशन हमने आपके सामने रखी है। लास्ट ब्रेक है हमारी, जो लोग इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हम मसले की गहराई को इस वक्त जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जहां पर लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, अलाइनमेंट्स ख़राब हुई हैं, करोड़ों रुपए की ज़ाहिर सी बात है लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके साथ साथ जो ये एक तो माली नुकसान, माली के साथ जो है वो खुदा न खास्ता इस वक्त जानी नुकसान भी इन चीज़ों से जो है वो हो रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो अपने मामलात चला रहे हैं, या जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, बहुत सख्त किस्म के जो है वो दुश्वारियों का बायस है उनके लिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके जानने की कोशिश कर देंगे जो मसला है इसका हल कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यहाँ पर रहना, यहाँ पर बात करना ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होता है इस में, जहाँ पर परेशान, जहाँ जिस जगह पर स्मेल है, ताफून है, कैसे वहाँ पर रह रहे हैं सर? बस मजबूरी है, ਹੁਣ ਘਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫੋਕੀ ਮੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਭਾਓਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। इस बात है, इस चीज़ पे बंदे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आप गेस्ट को लेके आए, उसके गुजरने का रास्ता ना हो, उसके बैठने का रास्ता ना हो। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਫੋਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ थे, कभी ਕਿਸੇ ਘਰ कभी ਕਿਸੇ ਘਰ। तो फिर किस तरह, जाहिर सी बात है, इस जहाँ पर ये 1-1 फीट पानी खड़ा हुआ है, बीचों बीच से जो है वो नालियाँ बह रही हैं गली की, तो किस तरह फिर वो उनकी तदफीन किस तरह की गई, किस तरह आपने जो है वो रस्मात जो थी अदा? जनाजा ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ इसी पानी के अंदर? हाँ जी बिल्कुल ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। बड़ी तकलीफ दे बात हो गई यार। फिर भी आप ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ 100 200 ਦੇ ਦਿਓ, 300 ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਰਨ। अच्छा, ये एक तो ज़ाहिर सी बात है, ये बात है कि जिस तरह जिन दुश्वारियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ ही यहाँ पर जो घर हैं उनकी जो इस वक्त प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं। क्योंकि अब एक घर जो 1 करोड़ रुपए में बना था, अब जिस तरह का इन्वायरमेंट है तो कोई उसके लिए 60 लाख भी देने को तैयार नहीं हो। नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम है कीमतें यहाँ। इसी गंदे पानी की निकासी ना हो तो इस पानी की वजह तो ज़ाहिर सी बात है जी, हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो बीवी बच्चे हैं, वो उनकी जो परवरिश है, उनकी जो है वो एक किस्म की परवरिश वो साफ़ सुथरे माहौल में हो। लेकिन जब इन्वायरमेंट इस तरह का होगा तो कभी भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी जो है वो परवरिश बिल्कुल बेहतर अंदाज से हो सके। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे मजाज हैं सर? ठीक है सर, शुक्रिया आपका, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। ये लोग तो 3 साल का बोल रहे हैं, 2014 की फुटेज निकालें, सिटी 41 की, उसमें भी मेरी तस्वीर है। हम लोगों ने उधर भी एहतजाज किया था, उनकी मेहरबानी की बोला कि करके दें, लेकिन सर ये मसला नहीं हो रहा। तकरीबन 10 साल पुरानी फुटेज निकालें, यही मसला है,
ये काम नहीं होता। सर्दियों के 1-2 महीने ख़त्म हो जाए वो क्या ख़त्म हो जाए। अच्छा, सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, इस वजह से ख़त्म हो जाता है, या सर्दियों को आकर वो कोई मेंटेनेंस वगैरह करते हैं? ये वजह क्या है? क्योंकि सर्दियों में आप कह रहे हैं कि वो ज़रा उसकी जो पानी है वो बेहतर हो जाता है। सर सर्दियों पे को लोग पानी यूज़ कम करते हैं सर, इसी वजह से, और कोई मसला नहीं है कि वो कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। अच्छा, फिर यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोई महकमे की वजह से पानी कम या ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो लोग खुद ही जब उसका इस्तेमाल कम करते हैं तभी जो है वो ख़त्म होता तभी वो ख़त्म होता है। ये तो सब बहुत ज़्यादा मसला है। हमारे जो नज़दीकी घर है उसके तो दुकान पे शॉप पे पानी आ गया, उसका तो गरीब बंदा, उसका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, वो किसने भरना है? बिल भी अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मसला नहीं हल करते। अच्छा, बिल हमारा आते हैं यहाँ पर वासा के? बिल आते हैं हमारे इस वासा के आते हैं, बिल अदा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये हमारा मसला नहीं हल होता। सूरत हाल और सिचुएशन आपके सामने UC 34 के हम जो इस वक्त डूबती है उसकी हालात सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े, इन्होंने बिल हाथ में पकड़े हुए, लगता है कि कोई ज़्यादा इस दफ़ा बिल आ गया या बिल आ गया और काम नहीं हुआ। तो ये जो ज़ाहिर सी बात है, इनकी जो ये शिकवे शिकायत हैं, इनको को मसले मसाले यानी कि ज़ुबानी सुनते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक। क्या सर ये बिल हाथ में आपने थामे हुए हैं? बिल इसलिए मैं पकड़ा हुआ कि इतनी बारी जो है ना हमने कंप्लेन करवाई है, वो आते नहीं। ये देखो कितनी कितनी डेट हमने रखी है, लिखी हुआ है। ये डेट सारी मेंशन है जी। 8वें महीने में भी करवाई गई, 6ठे महीने में भी करवाई गई, 7वें में भी करवाई गई, फिर 8वें में भी 2-3 दफ़ा कंप्लेन करवाई गई। देखो सारी लिखी हुई है ना जी जी, 7वें में भी फिर भी करवाई गई। तो ये हर माह आप कंप्लेंट्स तो करते रहे हैं, डेट मेंशन है ऊपर, तो उनकी तरफ से कोई आकर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की? मारता चला जाता, फिर चला जाता, फिर बंद हो जाता। इस दफ़ा फिर ये बिल तारा हमने 18 से पता नहीं कितने रुपये। ये वासा का बिल है बिल्कुल जी। ये बुज़ुर्ग जो हमारे साथ खड़े थे, ये बुज़ुर्ग हमें बता रहे थे कि इन्होंने जो है ये वासा का बिल जो है इसकी अदायगी की हुई है, क्योंकि हमें जिस तरह हम कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो हमें ये उनकी तरफ से एक वजह हमारे सामने रखी जाती है कि जी हमारा रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू इसलिए नहीं है कि जो बिल आ रहे हैं उनकी लोग अदायगी नहीं कर रहे, अदायगी हो रही हैं। हम जाते हैं, हम देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग हमें बताते हैं कि भाई हमने अदायगी की हुई हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन फिर वही मसला है कि काम ज़ाहिर सी बात है कि कहीं पर होता जो है वो लोगों को नज़र नहीं आता। ये चीज़ें कितनी सर तकलीफ़ दे हैं शहरियों के लिए, जब इस तरह के हालात माहौल में आप रह रहे होते हैं। इन हालात माहौल में गुजर हो गई थी, हमने जनाजा उठाया, वो पानी में से हमसे गया था, हमसे उठाया ना गया। बहुत तकलीफ है, जो आने वाला आता है उससे भी हम शर्मिंदा होते हैं, और हमारे ये इर्द गिर्द का जो माहौल ये भी बहुत ख़राब है। अच्छा, तो ये कितना अरसा कितना हो गया वैसे? तकरीबन इसको 7-8 साल इस तरह ही हो गए। 7-8 साल से ये पानी इसी तरह? जी जी जी, इसी तरह चल रहा है। ये पानी और सूरत हाल आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, वो मैं कह रहे थे कि भाई 7 साल से जो है वो 8 साल से जो है वो पानी इसी तरह ही जो है वो खड़ा हुआ है, पानी की निकासी जो है वो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें सर आपको कोई बेहतरी के इम्कानात भी नज़र आते हैं कि बेहतरी? मरियम साहब ने जो ऐप बनाई हुई ना, उस पर ही हमने दरख्वास्त डाली थी, यानी कंप्लेन पोर्टल जो किया था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इधर हाफिज साहब को फ़ोन करते, हाफिज साहब भी नहीं आता, दूसरे जैमस वो भी नहीं आता, जो अलाइड बैंक के सामने जो है दफ्तर, उधर भी हम जाते, उधर भी कोई सुनाई होती। अच्छा, यानी आप बार बार दफातर के चक्कर लगाते रहे लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे? आज मैंने तकरीबन 17 दफ़ा उसका फ़ोन किया था ना जी। ये देखो 10 बारी 8 बारी ये उसको हाफिज। ये बुज़ुर्ग शहरी जो हमारे साथ खड़े थे, उन्होंने अपने मोबाइल से कॉल हिस्ट्री जो है वो निकाल कर दिखाई है, जिसमें जो मुतलका इदारा है उसको जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की गई है और 10 बार कॉल्स की गई हैं। फिर जो आगे उनके सुपरवाइज़र साहब थे इस इलाके के, उनको भी कॉल्स करने की कोशिश की गई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कि उनकी तरफ से जो है वो कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आया। तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ इंसान को देती हैं कि आप जब बिल भी अदा करते हैं, बिल की अदायगी करने के बाद आप जो ज़ाहिर सी बात है आप हर तरह के टैक्सेस भी देते हैं, फिर भी आपका काम नहीं होता। मैंने टैक्स भी दिया, तकरीबन 90-95 हज़ार टैक्स दिया, इधर का भी दूसरी साइड का भी है, फिर भी काम नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है जी, बार बार टैक्सेस की अदायगी के बावजूद भी काम ना होना, ये ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए तकलीफ दे है। क्या समझ हैं सर? ठीक है सर, ठीक है। 18 नंबर गली डूबी खड़ी, तोड़ो तोड़ी टोटल सारी देख के चेक करो, तसल्ली करो, फिर बात करो। हमने पीछे जो इलाके देखे हैं, इससे कबल 1-2 गली देखी है, वो साइड पे देखी है, खाता ना कोई भी क्लियर नहीं था, सामने से डूबा खड़ा।
मट्टी सारी गलियों की यही सिचुएशन है आगे भी टोटल गार्डन में लेगी। तो ये आपने इदारों को फिर तवज्जो उनकी नहीं दिलाई कि यार कुछ देखो तो तवज्जो दिलाई, दारा आवे थे तवज्जो दइए ना, दारा किन कहिए, आते भी नहीं है, आते भी नहीं। आधा काम हुआ, आधा काम छोड़ के आगे चल गए। अभी का मतलब मौके का मतलब अभी वो उनकी गाड़ी यहाँ पर आई हुई थी, आधा काम किया, आधा छोड़ के आगे चल गए। एक तो और मैं पीछे भी गया वहाँ, कहा उनको कर देते हैं लेकिन नहीं किया। गड्डी लगी है सारा दे मौजूद आ, मौके ते मौजूद आ, जड़ा मतलब बाकी ते खाता जड़ा हैगा वो लम्मा चौड़ा वा ना, कोई मतलब इन्हां दा सिर्फ एडी साहब ने मतलब अगले दिन शिकायत की सी, उन्होंने बात सुनी आ, वो 2 दिन मतलब चलिया वा, 2 दिन फिर बंद। हाँ गाड़ी आती है, तस्वीर लाते सूखी जगह पे, गीली जगह पे नहीं लगाते, उधर पानी उधर नहीं लानी, इधर कैमरा मारना, ठीक है सलाम अलैकुम। यानी वो खुश्क जगह पे खड़े हो के वो ये कह देते हैं कि हमने ये इलाका क्लियर करवा दिया, साफ सफाई हो गई, चाहे फिर वो आवाम पानी में डूबती रहे, कुछ भी वो दिन डूबे इतना अही डिंगी मच्छर पे पड़े हैं, तो देखो सही जाके। ये हालात सिचुएशन आपके सामने है, जिस तरह लोग अपना जो गम है, अपना जो उनके दिल की आह है वो आपके इदारों के सामने रख रहे हैं कि अभी वो बता रहे हैं कि गाड़ी आई और गाड़ी ने आधा काम किया और आधा काम करके चले गए, और जाहिर सी बात है कि फिर किस तरह और हम किस तरह जो है वो अपनी चीज़ें मेंटेन करके चलेंगे। एक और भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, कैसे मिजाज में सर? ठीक है, पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਠੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ गाड़ी आती है ਉਹਦੇ ਚੱਲ देख दू के कार्रवाई पा के चल जाते हैं। अच्छा, हम जब भी जाते हैं, ये पहले मैं बुजुर्ग हमारे साथ खड़े थे उनसे मैं बात डिस्कस कर रहा था, वो हमें इदारा कहता है, वासा कहता है कि यार हमें जितने वसाइल दिए जा रहे हैं ना, हम उनमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एमडी साहब वो पोर्टल उनका चल रहा है, वो उन पे हमें दिखा रहे हैं कि भाई इतनी कंप्लेंट्स आ गई हैं, इतनी सॉल्व हो गई हैं, उन्होंने तो टर्नओवर कोई अपना 85-95 तक रखा हुआ है कि भाई इतने जो है वो इलाके साफ़ सुथरे हो गए। सूखी जगह तो दिखा देंगे जी, बाकी पानी में डूबे पे रहते लोग, पानी गलियों में मुकदर खत्म होता ही नहीं, सारे बाजार इधर डूबे। 18 नंबर बहुत 18 नंबर सारी डूबी पई है। चीज़ें हालात हमने आपके सामने रखी हैं, और जिस तरह की सिचुएशन है भाई हमें बताया है भाई ने कि गल ये भी ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਖਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। मरीम नवाज साहिबा का साफ़ सफाई का एक प्रोग्राम शुरू रहा था, कोई हुई थी तब? जी वो उनके साथ बात जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ बात हुई थी, वो जो सीएम पोर्टल है, तो वो हमारी कंप्लेनें वगैरह उधर दर्ज हैं, वो जब कंप्लेन करते हैं ना उसके 1 दिन के बाद है ना वो रिसॉल्व का मैसेज आ जाता है, तो वो काम नहीं हुआ होता। आपने इधर देख रहे हैं, ये तो रिजॉल्व का मैसेज आपको आगे आके आपकी कंप्लेन हमने हल कर दी है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। ये भी जाहिर सी बात एक फैक्टर है जो भाई में बता रहे थे कि जो कंप्लेन के इस वक्त पोर्टल बनाए गए हैं उन पर जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो भी चीज़ें जाहिर सी बात है कि सिर्फ जो नीचे काम करने वाला अमला है वो पिक्चर्स तक, तस्वीरों तक उनको महदूद कर देता है, और फिर इनको ये मैसेज मौसूल होता है कि भाई जो शिकायत आपने की थी उस पर मिनिमम अमल हमने कर दिया और आपका मसला जो है वो सॉल्व हो चुका होता है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। उम्मीद यही की जाती है कि वासे इस चीज़ पर तवज्जो ज़रूर धरेगा, ख़ास तौर पर UC 34 जिस तरह पानी की नज़र हो रहा है, इस यहाँ के इलाके जिस तरह पानी की नज़र हो रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए ज़रूर सोचा जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।